اسلام آباد کی شام مارگلا کی ڈھلوانوں پر اپنے پیر پھیلا رہی تھی۔ اس سیوانح ابر کے شاہانہ سویٹ میں فضا باہر کے موسم سے کہیں زیادہ بوجھل اور سرد تھی، لیکن پرداشت سویٹ میں طلال خان زادہ کے ماتھے پر موجود تیور باہر کے موسم سے کہیں زیادہ سرد تھے۔ وہ ریپ کے زینیہ والے جس کی بازگشت پورے ملک میں سنائی دی تھی، اس کی آخری فیصلہ کن سماعت کے بعد طلال 2 دن ضروری کام کے لیے چکوال گیا ہوا تھا، جہاں سے آج اس کی واپسی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر جانے کی بجائے ٹائم بچانے کی خاطر وہ سیدھا ہوٹل ہی میں پہنچا تھا تاکہ زیادہ لیٹ نہ ہو۔ میٹنگ کے بعد اس نے واپس حویلی جانے کے بجائے نانا جان کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے ان کی طرف جانا تھا۔ سب کو پک بھی کرنا تھا، مگر کلائنٹس کی تاخیر نے اسے اس کمرے میں مقید کر دیا تھا۔ منیر، میں پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں پر ویٹ کر رہا ہوں، ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں، کوئی کلائنٹ نہیں پہنچا۔ کیا میں تم لوگوں کو اتنا فارغ لگتا ہوں کہ اتنی دیر انتظار کرتا رہوں؟ آج کی فلائٹ لینڈ ہونے سے پہلے ہی اس کے پی اے نے اس کے لیے ایمان ابر ہوٹل میں روم بک کروا دیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد اسے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک کلائنٹس کے آنے کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ وہ روم میں ہی تھا ابھی، اور ہمیشہ کی طرح اس تاخیر پر اس کی طرف سے ڈانٹ پی اے کو ہی پڑ رہی تھی۔ سر، معذرت چاہتا ہوں، ابھی تک تو کلائنٹس کو آ جانا چاہیے تھا۔ ٹوں ٹوں۔ ابھی دوسری جانب سے پی اے کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ موبائل بیٹری ڈیڈ ہونے کی سکرین آف ہو گئی تھی۔ طلال نے سخت کوفت کا شکار ہوتے موبائل بیڈ پر پھینکا تھا۔ اب سوائے انتظار کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بیڈ پہ پڑا اپنا ڈیڈ فون دیکھ کر ایک گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ عجب بے چینی تھی، عجب اضطراب تھا۔ آج نہ جانے کیوں اسے اپنی لٹل گرل کی یاد شدت سے ستا رہی تھی، بلکہ کسی خوشبو کی طرح مسحور کر رہی تھی۔ طلال خان زادہ، جو اپنے قانون اور عدالت کے کٹہرے کا بے تاج بادشاہ تھا، اپنی زندگی کی اس معصوم سی ہستی کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا تھا۔ حالانکہ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ 2 دن بعد لوٹ رہا تھا، بلکہ اکثر وہ اپنے کام کی وجہ سے ٹریول کرتا رہتا تھا، مگر آج اس سے ملنے کی تڑپ کچھ سوا تھی۔ شاید یہ ان کی پچھلی حسین ملاقات کا اثر تھا کہ وہ لمحہ بلمحہ اس کی دلربا نے اپنی محبت اور یقین کا مان رکھتے ہوئے وہ تمام گھٹیا تصویریں طلال کے سامنے رکھتی تھی، جو کہ دشمنوں نے اسے بلیک میل کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کوئی شک نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے شوہر کے کردار پر اس قدر مضبوط بھروسہ کیا کہ طلال کی نظروں میں وہ مزید معتبر ہو گئی۔ طلال خان زادہ وہ لمحے یاد کرتے مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں تفاخر بھی تھا اور محبت بھی۔ طلال جانتا تھا یہ گھناؤنی حرکت وہی گروہ نے کی ہے جس نے زینیہ کی اس کی سماعت سے پہلے اس پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملے بھی کروائے تھے۔ وہ حملے طلال خان زادہ کو ڈرانے کے لیے تھے، مگر انہوں نے الٹا بیرسٹر طلال خان زادہ کے کیس کو مزید سٹرونگ بنا دیا تھا۔ اور جب اس کی بیوی نے وہ تصویریں حقارت سے ٹھکرا کر اس پہ یقین کرتے اسے معتبر کیا، تصویریں اسے دکھا کر اپنا مکمل اعتبار اس کے حوالے کیا، تو طلال خان زادہ کی جیت تو وہیں ہو گئی تھی۔ زینیہ کے ملزم کو سزائے موت سنوانا تو محض ایک قانونی کارروائی تھی، اصل فتح تو اس نے اپنی لٹل گرل کی نظروں میں حاصل کی تھی۔ اسے اب شدت سے رخصتی کا انتظار ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا دشمن اب بھی گھات میں ہے، مگر جب ڈھال اتنی مضبوط ہو تو تلوار خود بخود ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ اسے ان تصویروں کے معاملے کی ذرا پرواہ نہ تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا دشمن اس معاملے میں سوائے شکست کے دوچار ہونے کے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا جہاں اسلام آباد کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ وہ بھی سگریٹ سلگاتے لبوں میں دبا کر کشی لے رہا تھا۔ اچانک سے روم کا دروازہ کھلا اور کوئی نفوذ تیزی سے اندر داخل ہوا تھا۔ طلال خان زادہ نے حیرت سے آنے والے کو سخت ناگوار نظروں سے گھورا، جس نے ناک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ طلال کی بھویں تن گئی۔ ایکسکیوز می، کون ہیں آپ اور اس طرح میرے روم میں کیوں آئی ہیں؟ طلال خان زادہ پیچھے مڑ کر اپنے مخصوص سخت پارٹدار اور سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی دروازے کی جانب منہ کیے کھڑی، دروازے کا ہینڈل تھامے ہوئے تھی۔ اور کون ہو تم؟ طلال خان زادہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ انوشا کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ اتنا بڑا قدم اس شخص کے کہنے پہ اٹھا تو چکی تھی، لیکن اسے یہ بھی اچھے سے معلوم تھا وہ آگ سے کھیل رہی ہے۔ اس سب کے علاوہ وہ شخص اسے چھوڑنے والا ہرگز نہیں تھا، لیکن اندر ہی اندر ایک سکون بھی تھا، کیونکہ وہ مطمئن تھی کہ اب سے کچھ دیر بعد جو کھیل وہ کھیلنے والی ہے، وہ طلال خان زادہ جیسے خوددار سر مرد کو
इस कदर बेबस और मजबूर कर देगा कि वो अपनी तमाम तमन्नाओं को बाला ताक रख कर अनुषा को अपनी ज़िंदगी, अपनी तकदीर का हिस्सा बना लेगा। अब इसके पास कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा चारा बाकी नहीं रहने वाला था। इसी लम्हे बाहर से ज़ोरदार अंदाज में दरवाज़ा नॉक होने लगा था। तलाल खानज़ादा समझ नहीं पाया था ये क्या हो रहा है। इससे पहले वो लड़की कोई हरकत करती, तलाल ने बिजली की सी तेज़ी से इसकी कलाई थामी और उसे अपनी जानिब खींचा। इस कार्रवाई से इसके नाखून तलाल की हथेली पर खराशें छोड़ गए थे, मगर तलाल की गिरफ्त आनी थी। अनुषा ने शाल लपेट कर अपने चेहरे को मास्क से छुपा रखा था। कौन हो तुम? इस तरह मेरे कमरे में आने का मकसद क्या है? बाहर दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीटा जा रहा था। तलाल खानज़ादा को शिद्दत से किसी गड़बड़ का एहसास हुआ था। जब ही एक झटके से इसने इस चेहरे से मास्क हटाया। तलाल ने जैसे ही इसके चेहरे से मास्क खींचा, अनुषा की आंखों में खौफ के बजाय एक अजीब सी फातहाना चमक लहराई। तलाल खानज़ादा हैरत से गंग अभी तक इसकी मौजूदगी की वजह भी न पूछ पाया था कि अनुषा ने अपनी शाल कंधों से गिराई और वहशियाना तेज़ी के साथ तलाल के सीने से जा लगी। इसकी उंगलियां तलाल के कोट के गिरबान में ऐसे पेवस्त थी कि गोया वो इसके वजूद में गुम होने की कोशिश कर रही हो। तलाल की हैरत अब गुस्से में बदल रही थी। इसने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर वो एक नाग की तरह इससे लिपट चुकी थी। मिस अनुषा, होश में आइए, क्या बदतमीजी है, पीछे हटें। तलाल की आवाज़ में गरज थी। वो शेर की सी धार से बोला। अनुषा को एक लम्हे के लिए अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हुए, मगर बात न मानते अनुषा ने अपने लब लरजते हुए इसके कान के करीब किए और सरगोशी की। आज तो आपको कोई नहीं बचा सकता बैरिस्टर साहब। इसकी सरगोशी पे तलाल पर जैसे किसी ने खौलता हुआ पानी डाला था। इसने एक झटके से अनुषा को खुद से दूर धकेलते पीछे फेंका था, जिस पे अनुषा जल्दी से अपना गिरबान चाक करते, हार न मानते हुए फिर से इसके तवाना सीने से चिपकी। इससे पहले तलाल उसे बालों से खींचकर पीछे धकेलता। इसी लम्हे दरवाज़ा एक झटके से बाहर से खोल दिया गया था और सबसे पहले जो चेहरा सामने आया वो तलाल खानज़ादा अपनी जगह पर पत्थर का कर गया था। हुरैन जो हाँफती हुई राहदारी से आई थी, जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, इसके पैरों से तले ज़मीन निकल गई। सामने का मंजर किसी खंजर की तरह इसके सीने में उतरा था और के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई थी। मध्यम रोशनी में इसने देखा कि तलाल खानज़ादा, इसका वो बेशरम बैरिस्टर जिस पर वो सबसे ज़्यादा यकीन रखती थी, एक लड़की को अपनी बाहों में भरे खड़ा था। अनुषा का सर तलाल के कंधे पे था और तलाल के हाथ इसके कंधों पर थे। दूर से देखने वाले के लिए ये किसी गले मिलते हुए जोड़े का मंजर था, ना कि किसी ज़बरदस्ती का। हुरैन के हाथ से इसका पर्स छूटकर नीचे गिरा। इसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसा सन्नाटा छा गया था जो कि मौत से ज़्यादा भयानक था। तलाल। हुरैन की आवाज़ इतनी ज़्यादा मध्यम थी कि शायद वो खुद भी ना सुन पाती। तलाल ने सुर्ख उगलती आंखों से झटके से अनुषा को परे धकेला। इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। इसने हुरैन को वहाँ देखा तो इसके पैरों से जान निकल गई थी। जो शख्स पूरी दुनिया के सामने दलीलें देता था, अपनी बीवी की आंखों से छलकती बेयकीनी के सामने गूंगा हो गया था। हुरैन, सुनो, ये नहीं है जो तुम देख रही हो, आई स्वेयर। तलाल इसकी तरफ बढ़ा था, मगर हुरैन 2 कदम पीछे हट गई। अनुषा ने इसी पल अपने बिखरे बाल समेटते हुए एक ऐसी नज़र हुरैन पर डाली जिसमें हमदर्दी कम और जहर ज़्यादा था। इसने जानबूझकर अपना फटा हुआ गला नीचे करके दोबारा दुरुस्त किया, जैसे कोई बहुत बड़ा वाक़या गुजर चुका हो। हुरैन ने एक पल के लिए अपनी साकिन नज़रें तलाल खानज़ादा की आंखों में गाड़ दी। वो एक ऐसा लम्हा था जहाँ हज़ारों हरफ़े शिकायत लबों तक आके दम तोड़ गए थे। इसने बस एक तवील बोझल सांस ली और ज़ब्त की तमाम हदें फैलाती हुई पीछे मुड़कर भागी। इसकी चादर का आंचल हवा में लहराता रह गया। इसके यूं जाने पर तलाल खानज़ादा ने दीवाना वारों से पुकारते हुए अभी बाहर की सिमत कदम बढ़ाया ही था कि दफतन मंजर बदल गया। अचानक न जाने कहाँ से होटल के स्टाफ के साथ साथ जाने माने चैनल्स के कई कैमरों की फ्लैश लाइट्स इस पे चमकी थीं। रिपोर्टर्स हाथों में माइक उठाए अंदर को आने को बेताब थे, जिन्हें देखकर वो इसी ऐन लम्हे अनुषा को अपने मकरों का जाल फेंका और पल में ज़ब्त का बंधन तोड़कर ज़ारों कतार रोने लगी। इसके मसनूई आंसुओं ने मीडिया की तपती हुई आग पर तेल का काम किया था। अब तमाम कैमरों का फोकस इसकी जानिब था। सब देखना चाहते थे इस लड़की को जो बैरिस्टर तलाल खानज़ादा के साथ पकड़ी गई थी। चंद ही घंटों में डिजिटल स्क्रीन्स पर एक आग लग गई। हर न्यूज़ चैनल की स्क्रीन लहू रंग आँखों से सुर्खियों से तप रही थी। एंकर्स की आवाज़ें जो आमतौर पर खबरें पहुँचाती थी, अब किसी तीखे निश्तर की तरह
बैरिस्टर तलाल खानज़ादा की साख को धेड़ रही थी। कानून का पासदार या कानून शिकन एक मारूफ चैनल की हेडलाइन चीख रही थी। कैमरे की तेज नजरें बार बार इस होटल के कमरे के नीम दरगोशों और वहां मौजूद अनुषा के लड़से वजूद को दिखा रही थी। स्टूडियो में बैठे तज्जियाकार जो कल तक बैरिस्टर तलाल की कानूनी गिरफ्त की कस्में खाते थे, आज निहायत बेरहमी से इसके किरदार का पोस्टमार्टम कर रहे थे। बैरिस्टर तलाल खानज़ादा होटल के कमरे में अपनी माशूका के साथ पाए गए, जबकि वो पहले ही अपनी कज़न के साथ मंसूब थे जिसने उन्हें वहां रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसे ही बहुत बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे। वो शख्स जिसने इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर कई मुजरिमों को कटहरे तक पहुंचाया था, आज खुद ऐसी रुसवाई के भंवरे में खड़ा है जहां से वापसी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। क्या ये महज इत्तफाक है या खानज़ादा खानदान के चश्मे चराग के दोहरे मेयार का पर्दा चाक हुआ है? क्या इस मासूम लड़की को इंसाफ मिलेगा जिसकी इज्जत को तार तार किया गया है, या इस बार भी शोहरत के जोर पर इस मामले को खामोश करवा दिया जाएगा? टीवी चैनल पर ऐसी बेशुमार सुर्खियां चलने लगी थी। अनुषा के बसे सकते हुए आंसू जो स्क्रीन पर बार बार क्लोजअप में दिखाए जा रहे थे, जिस पे अवामी हमदर्दी समेटने में वो कामयाब हो चुकी थी। लेकिन इस सब के बावजूद तलाल खानज़ादा के लिए ये सब किसी बेवकत गर्द से ज़्यादा कुछ नहीं था। जिस मीडिया ट्रायल ने अच्छे के कदम उखाड़ दिए थे, वो तलाल खानज़ादा के माथे पे एक शिकन भी ना ला पा रहे थे। इसके नज़दीक ये सस्ती शोहरत और लायानी तहमतें इसके वक़ार के सामने हिच थीं। इसने एक सर तमकनत भरी नज़र इन चमकते कैमरों और सिसकती हुई अनुषा पे डाली, मगर इसकी नज़रों में गुस्सा नहीं बल्कि ऐसी कातलाना बेनियाजी थी जो सामने वाले को अपनी औकात याद दिला दे। वो अनुषा के जाल को काटने के लिए नहीं बल्कि इस खला को भरने के लिए शिद्दत से बेताब था जो हुरैन के जाने से पैदा हुआ था, जो इस वक्त इसकी नज़रों से झलकता हुआ नजर आया था। मीडिया के नुमाइंदे सवालात की बौछार कर रहे थे, रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तलाल किसी बिखरे हुए शेर की तरह उनके दरमियान से रास्ता बनाता हुआ निकल गया। इसके लिए इस वक्त पूरी कायनात एक तरफ थी और वो लहराता हुआ सिंहाचल एक तरफ, जो लहराता हुआ इस राहदारी को पार करके गया था। उसे परवाह नहीं थी कि मैगजीन्स क्या लिखेंगे, स्क्रीन्स पर क्या तमाशा लगेगा। उसे परवाह थी तो सिर्फ इस गहरी सांस की जो हुरैन ने उसे देखते हुए ली थी, इन कदमों की जो उसे तन्हा छोड़कर गए थे। इसने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसकी इन खामोश तमाम चीखते हुए एंकर्स पे भारी थी। वो जानता था कि वो आग से खेल रहा है, लेकिन उसे आग से बचना नहीं था। उसे तो बस इस लड़की तक पहुंचना था जो तलाल खानज़ादा की कुल कायनात थी। तलाल खानज़ादा ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। इसकी मंजिल कोई कानूनी अदालत नहीं बल्कि वो रास्ता था जहां वो इसकी लिटिल गर्ल के कदमों के निशाना भी ताज़ा थे। खामोशी इतनी गहरी थी कि हवेली के लाउंज में दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी किसी हथौड़े की तरह महसूस हो रही थी। हुरैन जिसके वजूद से कभी शराफत और सुकून महकता था, आज आतिश फिशा बनी खानज़ादा खानदान के तमाम नफूस के सामने खड़ी थी। इसकी आवाज़ में वो लर्जिश थी जो टूटते हुए एतबार से पैदा होती है। इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज कोई बम की मानी थे जो सब पर फोड़े गए थे। सबके सरों पर आसमान गिरा था। जमार खानज़ादा ने बेसाख्ता दिल को सहलाया, जबकि रोशानी बेगम ने बेयकीनी से लबों पे हाथ रखे थे। अभी कुछ देर पहले न्यूज़ चैनल्स पर गर्दिश करने वाली खबरों से बेयकीन थी कि जब भी लुटी पुटी हालत में हुरैन ज़ारो कतार रोती हुई घर में दाखिल हुई और इसके बताए जाने वाले अल्फाज इनके लिए क़यामत सी बर्पा कर गए थे। खबरों में आए रोज़ किसी न किसी स्कैंडल देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी कुछ देर में ही हुरैन की इस लुटी पुटी हालत ने इसको परेशान कर दिया था, जो ज़ारो कतार रोती हुई किसी हारे हुए लश्कर की तरह घर में दाखिल हुई थी। हुरैन जो हिम्मत करके घर तो आ तो गई थी, लेकिन अब खुद में मजीद हिम्मत ख़त्म होते हुए महसूस हुई थी। उसे लगा था अब जैसे कभी सांस नहीं ले पाएगी। मेरा बेटा, आपको गलत फहमी हुई होगी, आप जानती हो तलाल ऐसा मर्द नहीं है। समार खानज़ादा ने हुरैन को सीने से लगाते पूरे यकीन के साथ बोलते हुरैन को तसल्ली दी। मैंने अपनी आँखों से देखा उन्हें। मैंने भी पहले यकीन नहीं किया मेरे तलाल ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो होटल में मेरी आँखों के सामने किसी इसने तड़प कर का आखिरी लफ्ज़ अदा करना इसके लिए मुश्किल थे, जिस पर वो बिलक बिलक कर रो दी थी। वो शख्स जिसे हम सबसे ज़्यादा शराफत का पैकर और इस ख़ानदान का मान समझते हैं, वो कैसे हम सब के यकीन की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं? मुझे क्यों इतना बड़ा धोखा दिया? तलाल ने हुरैन अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ते हुए सिसक रही थी, जैसे वो अपने ही वजूद से इस सच्चाई को खुरच कर फेंक देना चाहती हो। इसकी ये सिसकियाँ लाउंज में मौजूद हर शख्स के दिल पर सांप बनकर लौट रही थी। वहाँ मौजूद हर फर्श की शिद्दत है जैसे किसी ने उनकी समातों पर सीसा पिघला कर डाल दिया हो। तलाल खानज़ादा का किरदार जो कभी नाकाबिले तस्खीर किला था, आज हुरैन की हकारत भरी नज़रों के सामने रेत की दीवार साबित हो रहा था। बेयकीनी की ऐसी धुन छाई थी कि किसी के पास लब कुशाई के लिए अल्फाज नहीं थे।
इसी स्नान में रुशाने बेगम ने, जिनके अपने वजूद में बेयकीनी की लहरें सर उठा रही थी, कमाल जब से काम लेते हुए कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने लरसे हाथों से हुरैन के कंधों को थामना चाहा। हुरैन मेरी जान, कभी कभी जो नजर आता है हकीकत इससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। तलाल, ऐसा नहीं हो सकता, कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है तुम्हें। इनका लहजा ममता की चाशनी और इल्तिजाओं से गूंथा हुआ था। वो चाहती थी कि हुरैन की आंखों में लगी हकारत की आग किसी तरह थम जाए, मगर हुरैन ने झटके से अपना कंधा छुड़ाया और इनकी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक अजनबी सी सर्द महरी आ चुकी थी। गलत फहमी हूँ? इसने जहरीली मुस्कुराहट के साथ सर झटकते नम आंखों से रुशाने बेगम को देखा। जिस हकीकत को मैंने अपनी रूह पर जख्म खाकर देखा है, उसे आपने गलत फहमी के पर्दों में नहीं छुपा सकती आप। आज खानजादा हवेली का वकार नहीं मरा मोरे जानी, आज मेरा एतबार मरा है, मेरा यकीन टूटा है, मेरा मान टूटा है। इसने अपने बिखरे हुए आंचल को समेटा और बिना मुड़े किसी की तसल्ली सुने सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। इसके कदमों की चाप में एक ऐसी बेबसी थी जो चीख चीख कर खामोशी मांग रही थी। वो अपने कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद किया कि इसकी गूंज पूरे लाउंज में मौजूद नफोस के दिलों को लरसा गई। रुशाने बेगम वहीं साकित खड़ी रह गई। जब बंद दरवाजे के पीछे हुरैन ने दरवाजे से पुष्ट टिकाते फर्श पर ढेर होते हुए अपनी चीखों को अपने ही दुपट्टे में दफन कर दिया था। तलाल खानजादा ने जिस लम्हे हवेली की दहलीज पार की तो उसके कदमों की आवाज़ ही बता रही थी कि वह अंदर से किस कदर बेचैन और तूफान ज़दा है। जितनी तेज ड्राइविंग करके वो पहुंचा था, इसका सांस उखड़ा हुआ था और माथे पर पसीने की बूंदें इसकी बेचैनी की गवाह थी। इसने लाउंज में मौजूद नफूस की खामोशी को अपने गर्जदार आवाज से चीरा था। हुरैन कहाँ है? वो घर पहुंच गई है? इसके लहजे में छुपी वहशतनाक तड़प ने जमार खानजादा और रुशाने बेगम को चौंका दिया। तलाल की आंखों में जो इस्तराब था वो किसी गुनहगार का नहीं बल्कि इस शख्स का था जिसको अपना कीमती सरमाया लुट जाने का डर हो, उसे पागल कर रहा हो। रुशाने बेगम ने बोझल दिल के साथ ऊपर की मंजिल की तरफ इशारा किया। वो ऊपर है बेटा, अपने कमरे में बंद है वो अभी। ऐसी कंडीशन इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही तलाल सीढ़ियों की तरफ लपका। तलाल की ये बेसाख्ता तड़प और इसके वजूद से फूटती दीवानगी ने रुशाने बेगम और जमार खानजादा के दिल में फैले शक व शुबहात के बादल जैसे छांट दिए थे। वो जो अब तक हुरैन की टूटी हुई हालत और मीडिया के शोर की जद में आकर तलाल के किरदार पर मुतनज़्ज़िल हो रहे थे, अब इसके इस्तराब को देखकर एक अनजाने सुकून की गिरफ्त में आ गए थे। तलाल की हालत किसी ऐसे शख्स की नहीं थी जो गुनाह करके छुपने की कोशिश कर रहा हो, बल्कि ये इस वफाशुआर मर्द की बेचैनी थी जिसकी कायनात लूट रही हो। एक मिचोर और जहादीदा निगाह जान लेती है कि मुजरिम कभी यूं तड़प कर अपनों की तरफ नहीं भागता। तलाल की आंखों में छलकती वो खालिस परेशानी वो इस बात का सबूत थी कि जो कुछ मीडिया पर दिखाया गया है वो महज दुश्मनों की बिछाई हुई एक शतरंज थी जिसका निशाना तलाल की इज्जत और वकार और हुरैन की मोहब्बत थी। जमार खानजादा ने एक तवील सांस ली। ये जो दीवानगी इसके कदमों में है रुशाने, ये किसी हवस परस्त की नहीं हो सकती। मेरा बच्चा बेकसूर है, उसे बस दुश्मनों की नज़र लग गई है। इनकी बात पर रुशाने बेगम ने सर हिलाया और दिल ही दिल में अपने रब के हुजूर झोली फैला दी। उन्हें यकीन हो चला था कि तूफान जितना भी बड़ा क्यों ना हो, तलाल की ये तड़प हुरैन के दिल में लगी आग को बुझा देगी। जमार खानजादा तलाल के दौड़े चले आने पर जैसे पुरसकून हो गए थे। हुरैन, दरवाज़ा खोलो। हुरैन, ये सब एक साजिश थी मेरी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। तुम तो मेरे ऊपर पूरा भरोसा करती थी, अब ऐसे क्यों कर रही हो? तलाल खानजादा की आवाज़ में कर्ब और इल्तिजा का ऐसे इम्तिजाज था कि जो हवेली के दरो दीवार को पिघला देने के लिए काफ़ी था, लेकिन एक ही वो नहीं थी जो वो पिघल रही थी। हुरैन की सिसकियों से बोझल आवाज़ अंदर से उभरी, आप प्लीज़ चले जाएं यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही ना थी, जबकि तलाल खानजादा को इसकी आंसुओं से भीगी आवाज़ सुनकर अपना दिल मुट्ठी में भिजता हुआ महसूस हुआ। तलाल की बेचैनी बढ़ने लगी। इसने फिर दस्तक दी, इस बार कदरे तेज़ दी, मगर नतीजा वही रहा। हुरैन, मेरी जाने, एक बार दरवाज़ा खोल दो, बस मेरी बात तो सुनो यार। कहा ना चले जाएं यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी, आपकी शक्ल भी नहीं देखनी, चले जाएं यहाँ से। तलाल का सब जवाब दे गया। इसकी रगों में दौड़ता खून उबाले खा रहा था। तुम अब ओवर रिएक्ट कर रही हो हुरैन, आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो वरना उसे तोड़कर अंदर आना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी आवाज़ में एक हाकमाना धमकी थी। अंदर बैठी हुरैन का दिल पहले ही सुलग रहा था। इसकी धमकी ने जैसे तपते कोयलों पर तेल का काम किया हो। एक ही झटके में एक जोरदार दरवाजे की कुंडी खोली। अभी हुरैन पीछे हटने ही लगी थी कि तलाल एक भिपरे हुए शेर की तरह अंदर दाखिल हुआ और पलक झपकते में दरवाज़ा लॉक कर दिया। हुरैन ने एक पल ज़ाया किए बगैर तलाल के गिरबान को अपनी नाजुक मुट्ठियों में जकड़ लिया। इसकी सुर्ख आंखों से निकलती हकारत की
चिंगारियां तलाल को जिंदा चला गई थी। जैसे आंखें सुर्ख, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर वो हकारत जो एक अरसे की जनूनी मोहब्बत का खून कर रही थी। इसलिए में क्यों आए हैं आप, क्या दिखाने आए हैं? वो चिल्लाई। रिलैक्स, मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। तलाल ने धीरे से कहते इसके नाजुक लरजते वजूद को थामना चाहा। इसके लब उसे तसल्ली देने के लिए अभी वाह ही हुए थे कि हुरैन ने इसकी बात काटते अपने नाजुक लबों से लफ्ज़ों का वो जहरीला खंजर चलाया जिसकी तवक्को तलाल को अपनी लिटिल गर्ल से हरगिज़ न थी। झूठ! हुरैन के हलक से एक जहरीली हंसी बरामद हुई जिसमें कर्ब की कई तहें छुपी थी। किसकी झूठ की दिहाइयां दे रहे हैं आप? क्या मैंने वो मंजर अपनी गुनाहगार आंखों से नहीं देखा? होटल का वो नीम अंधेरा कमरा और इस लड़की का वो आया होता वजूद जिसको वो दरवाज़ा खोलते ही छुपा रही थी, जिसने मेरी बरसों की अकीदत भरी मोहब्बत को एक पल में राख कर दिया। आपकी शराफत का वो मुकद्दस लिबास इसीलिए हमें तार-तार हो गया था जब आपकी हवस बरसती मीडिया के कैमरों की जीनत बनी। तलाल खानज़ादा, आप तो वो दरिंदे निकले जो अपनी ही प्यारों की यकीन का गोश्त नोच नोच कर खाते हैं। तलाल हैरत और शर्मिंदगी से इसकी इंतहा पर था। जहाँ इंसान को अपने वजूद के बिखरने का एहसास तक नहीं रहता, वो साकित और सामत खड़ा अपनी इस मासूम मनकुहा का ये तिखा और बेरहम रूप देख रहा था। वो अल्फाज जो हुरैन के गुलाबी लबों से जहर बनकर निकल रहे थे, तलाल के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो उसे अपनी ज़िंदगी में कभी खुद के लिए ऐसे जुमले भी सुनने पड़ेंगे। मुझे आप जैसे इंसान के साथ एक छत के नीचे सांस लेते हुए भी घुटन हो रही है। मुझे तलाक चाहिए, अभी, इसी वक्त और इसी लम्हे। डोंट यू डियर अटर दैट वर्ड अगेन, हुरैन। यू हैव नो आइडिया व्हाट स्टॉर्म यू इनवाइटिंग इनटू दिस रूम। दोबारा ये अल्फाज ज़बान पे लाने की हिम्मत भी मत करना, और तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम इस कमरे में किस तूफ़ान को दावत दे रही हो। इसके लफ्ज़ तलाक पर तलाल खानज़ादा को अपने पूरे बदन पर चोटियाँ रेंगती हुई महसूस हुई थी। गुस्से से तलाल खानज़ादा की हेज़लनट आंखें लहू रंग हुई थी। इसने अपने हाथ की गिरफ्त इसके जबड़े पर इतनी सख्त कर दी कि हुरैन के हलक से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। वो उसे दीवार के साथ पेवस्त करता हुआ इसके इस कदर करीब हुआ कि इसकी तपती हुई सांसें हुरैन की रंगत उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। छोड़े मुझे, वो इसके यूं चीखने पर वो हिचकियां भरती हुई इसके हाथ से अपना जबड़ा छुड़वाने की तगदो कर रही थी, लेकिन वो इसके जबड़े पर अपनी गिरफ्त बेहद मजबूत करता जा रहा था। इसके अल्फाज तलाल खानज़ादा को नंगी तलवार पर बिठा चुके थे। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो हुरैन, वो इसके कान के पास एक ज़ख्मी शेर की तरह पिघारा। इसकी आवाज़ में वो जलाल था जो किसी भी कमज़ोर दिल को लर्ज़ा दे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई तुम मुझसे आज़ादी मांगो? तुम मेरी मनकुआ हो, मेरी रूह की असीर हो, और मैं अपनी असीरों को मौत की दहलीज तक तो ले जा सकता हूँ, मगर खुद से जुदा नहीं कर सकता। तुम अपनी इन मासूम आँखों से जो देखा वो सच नहीं था, मगर जो नफ़रत तुम्हारी ज़बान से निकली है वो सच है, और मैं इस सच का गला घोंटना जानता हूँ। तुम एक खानज़ादे के निकाह में होते हुए ऐसी बकवास अपनी ज़बान पे कैसे ला सकती हो? यू ब्लडी! तलाल खानज़ादा इसके चेहरे के ऊपर अपना चेहरा झुकाता इतनी कुव्वत से दहाड़ा था कि हुरैन को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए थे। आंसू टूट टूट कर हुरैन की सियाह काली आंखों से गालों पर बह रहे थे। तलाल खानज़ादा का बस नहीं चल रहा था वो इसका चेहरा थप्पड़ों से सुर्ख कर दें। इसके अल्फाज हों जिसके दिमाग में किसी ताज़ियाने की तरह गूंजते हुए उसे गुस्से से पागल कर रहे थे। तलाल ने एक वहशियाना बेखुदी के साथ इसके बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ते झुके इसके लबों पर शिद्दत से अपने दांत गाड़े, जिन्होंने तलाक जैसे अल्फाज को निकालने की नाकाबिले बर्दाश्त गलती की थी। इसके दांतों के बेरहम लम्स को अपने होठों पर महसूस करते हुरैन के वजूद पे कपकपाहट तारी हुई थी, जिसे तलाल खानज़ादा अपने होठों में दबा गया था। तलाल खानज़ादा उसे सांस लेने की मोहलत दिए बगैर बुरी तरह से इसके होठों पर काबिज़ हुआ था। इसके लम्स में इतनी शिद्दत महसूस करते हुए हुरैन ने इसकी शर्ट को सीने से अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था। हुरैन के गाल तप कर अंगारा हुए थे, वो बेसाख्ता फड़फड़ाई, जबकि तलाल खानज़ादा ने उसे मुज़ाहमत करते देख के मज़ीद शिद्दत से इसके मुँह में अपनी ज़बान घोल कर इसकी कमर में हाथ डालते उसे ज़मीन से उठाया, और इस अचानक कार्रवाई पर वो साकित रह गई थी। हुरैन की तमाम तर नफ़रत, वो ऐसा लम्हा था जिसमें जहाँ हुरैन की तमाम तर नफ़रत एहतजा तलाल खानज़ादा के साथ शुद्ध लमस की नज़र होकर दम तोड़ने लगे थे। वो बार बार इसके पंखड़ियों पर अपने गुस्सा उतार रहा था। वो अपनी आंखों में आंसू लिए इसकी तरफ देख रही थी। इसकी सी आंखों में शिकवा देखते हुए तलाल खानज़ादा ने इसके बलाई लब को आज़ादी बख्शते हुए इसके निचले लब पर अपनी शिद्दत दिखाई थी।
وہ اب اس کی گردن پہ جھکا ہوا تھا، اسے ہی جسم میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی جانب لے گیا تھا، جسے دیکھتے حورین کی دھڑکنیں بند ہوئی تھی۔ حورین نے شدید مزاحمت کرتے ہوئے اس کی گود سے نیچے اترنا چاہا، لیکن وہ اس کے لبوں کو ایک بار پھر سے قابو میں کر گیا تھا۔ طلال خانزادہ اسے بیڈ کے نرم بستر پہ ایک جھٹکے سے گرایا تو حورین کے وجود میں کپکپاہٹ کی ایک لہر دوڑ اٹھی۔ اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا اور لب طلال کی بے رحم شدت کی گواہی دے رہے تھے۔ طلال نے جب اسے آزادی بخشی تو حورین کے چہرے پر حیا کی جگہ گھبراہٹ سی تھی۔ حورین نے خوفزدہ ہرنی کی مانند اپنی بڑی بڑی بھیگی آنکھوں کے ساتھ طلال کو دیکھا، جو اس وقت کسی بپھرے ہوئے طوفان کی مانند اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھتے ہوئے حورین کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ طلال خانزادہ نے ایک طنزیہ اور سرد ون سائیڈڈ مسکراہٹ اپنے لبوں پہ سجاتے اس کے چہرے کے اس قدر قریب ہو کر سرگوشی کی کہ اس کی تپتی ہوئی سانسیں حورین کے سرخ لبوں کو جھلسانے لگیں۔ بقول تمہارے میں ایک ہوس پرست درندہ ہونا، اس نے ایک شفقانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے لثے ہوئے گال پہ اپنی انگلی کی پشت پھیری۔ تو پھر ٹھیک ہے حورین بیوی، تیار رہنا، کیونکہ اس درندے کا اگلا نشانہ بہت جلد تم بننے والی ہو۔ اس نے حورین کے جبڑے پر اپنی گرفت میں ذرا سا اضافہ کیا۔ اس کی آواز کسی ناک کی طرح پھکار رہی تھی۔ جس غلاظت کا الزام تم نے میرے ماتھے پہ سجا دیا، اب اسی غلاظت کا ذائقہ چکھنے کے لیے اپنے وجود کو تیار کر لو۔ طلال نے اس کے ماتھے پہ بکھری لٹوں کو کسی تیز دھار خنجر کی طرح اپنی انگلیوں میں جکڑا اور اس کا سر پیچھے کی جانب جھکایا تاکہ وہ اس کی خونخوار آنکھوں میں چھپی بربادی کا منظر صاف دیکھ سکے۔ تم نے مجھے درندہ کہا تھا نا، تو پھر یاد رکھنا، درندے جب شکار کرتے ہیں تو رحم کی گنجائش نہیں چھوڑتے۔ مجھ سے اب کسی رحم کی امید بالکل مت رکھنا۔ میں تمہیں طلاق دے کر اس اذیت سے آزاد نہیں کروں گا، بلکہ اب میں تمہیں ان اندھیروں میں لے جاؤں گا جہاں میری ہوس پوری کرو گی تم۔ اب تم میری محبت کا مان نہیں بلکہ میری ہوس کا ایندھن بنو گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے پیچھے دھکیلا۔ بیڈ کی پائنتیں لگنے سے حورین کی سسکی بے ساختہ نکلی۔ سوات کی یخبستہ ہواؤں میں بھی شاہنواز خانزادہ کا چہرہ تپتے تندور جیسا ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود فون مسلسل لرز رہا تھا، جو اس کے اندر برپا ہونے والی شدید اضطراب کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سامنے دیوار پہ لگی LCD اسکرین پر سوشل میڈیا کی گندی سرخیوں کو دکھا رہی تھی، جہاں پہ وہ طلال خانزادہ کے کردار کی دھجیاں بکھیر رہے تھے۔ شاہنواز نے ایک بار پھر طلال کا نمبر ملایا، مگر بند ہونے کی اطلاع سے اس کے اعصاب بری طرح ہتھوڑے کی مانند لگ رہے تھے۔ اعصابوں پہ اس کا پورا جسم اضطراب کی وجہ سے چھلک رہا تھا۔ اضطراب جو اپنے خون اور اپنے بہترین ساتھی کے لیے محسوس ہوتا ہے۔ جب بھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے زمان خانزادہ صاحب کو کال ملائی۔ کچھ ہی دیر میں کال پک کر لی گئی۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ بابا کیا طلال گھر پر ہے؟ وہ میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہا، نہ ہی اس کا نمبر لگ رہا ہے۔ بابا اسے کہیں مجھ سے بات کرے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں وہ تڑپ تھی جو صرف ایک مخلص بھائی کے لیے مختص ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ زمان خانزادہ کی آواز بوجھل اور شکست خوردہ تھی۔ وہ کچھ ہی دیر پہلے گھر آیا تھا، دیوانوں کی طرح سیدھا اوپر حورین کے کمرے میں گیا، مگر ابھی چند منٹ پہلے وہ کسی زخمی اور بپھرے ہوئے شیر کی طرح بنا کسی سے ایک لفظ کہے باہر نکل گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو آگ تھی، شاہنواز، میں نے اسے پہلے کبھی اتنا ٹوٹا ہوا نہیں دیکھا۔ شاہنواز نے فون پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی آنکھوں میں طلال کے لیے اٹل یقین لرز رہا تھا۔ بابا، وہ اس وقت جس آگ سے گزر رہا ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ یہ سب اس کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش اور غلیظ پروپیگنڈا ہے۔ میں طلال کو جانتا ہوں بابا، وہ اپنی جان دے سکتا ہے، مگر اپنی غیرت اور اپنے نکاح کی توہین نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے آخری کیس کے دوران ہی مجھے بتا دیا تھا کہ دشمن اس کے وقار پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ایک طویل اور گہرا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا اضطراب اب ایک فیصلے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ طلال کا نمبر بن جانا مجھے ڈرا رہا ہے، وہ غصے میں خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ بابا، حورین اس وقت صدمے میں ہوگی، وہ اسے غلط سمجھے گی، مگر آپ کو طلال پہ یقین رکھنا ہوگا۔ میں بھی اسی وقت سوات سے نکل رہا ہوں۔ زمان خانزادہ نے اپنے بیٹے کے لہجے میں طلال کے لیے روحانی اعتماد محسوس کیا تو ان کے بجھتے ہوئے دل کو ایک سہارا مل گیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہیں شاہنواز اور احران اپنی لاڈلی بہن کی حالت دیکھ کر طلال کے خلاف نہ ہو جائے، مگر شاہنواز کی بصیرت نے ان کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ بیٹا، آپ جلدی سے آ جاؤ۔ حورین نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ اب بھی تمہاری ماں اور شیران بڑی مشکل سے دروازہ کھلوا کر اس کے پاس گئے ہیں۔ زمان خانزادہ کے لہجے میں ایک باپ کی بے بسی تھی۔ جی، آپ پریشان نہ ہوں، بس ہم آ رہے ہیں، میں آ کر ہینڈل کر لوں گا۔
چلیں جی، یہ بھی 2 ایپیسوڈس کا ہے وائس اوور. امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگے گا. اور دوسری بات یہی ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. کل میں نے آپ لوگوں کو شاید وائس اوور میں بتایا تھا کہ میں نے کافی ٹائم بعد اچانک سے اپنا یوٹیوب چینل کا وائی ٹی اسٹوڈیو اوپن کیا. تو میں نے وہاں دیکھا، میں نے کہا میرے چینل کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہونے والے ہیں فار مونیٹائزیشن. تو کیا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا. ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا چھوڑ دینا ہے. اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنا ہے، اپنا پیار شو کرنا ہے، کمنٹ میں بتانا ہے. باقی سٹوری انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ناول بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی. باقی اپنا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.